Assalamu alaikum, dear students of grade 10. I hope all of you are perfectly fine and you are busy with your ORCC preparations. You are busy with your exam preparations and you are taking a huge benefit from the ORCC program from Sky Classes. And I'm here for the last time in this ORCC program now. As I had told you, 10 out of 10. So in fact 10 at the rate of 10. So this time this is the 10th lecture for you, and in this lecture we'll be going through some important expected questions that are to come in your board exams. तो उम्मीद है कि आप सब अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशंस में हार्ट एंड सोल जुड़े हैं. आई एम वेरी as sure as kismet that all of you have done most of the revisions possible, because we are not much away from the exams now. It's a matter of days only now before you start going for those all important matric exams, and we are all in prayerful wishes for you. The whole Sky team is wishing that you do the best in the exams, you stay healthy and happy, and your preparation goes smooth as silk in all the subjects. We would pray that you score cent% marks in your exams, and you make use of your time effectively and efficiently during these preparation days, because this is the last part of your preparation, and obviously you would like to give it a best shot in all these days. So today I have got some expected questions for you in the examination, because we have almost done everything now, the outline, the aspects of important dimensions of important lessons, and the poems that we have done all together. We have done the grammar, we have done the formats, and the different explanations of some important writing skills there also, and we have done the lessons also, and we have gone through some important areas of importance in those lessons, stories and poems. And now it's time for me to discuss with you some important questions, expected questions. तो discuss तो नहीं करेंगे, बस थोड़ा outline करके आपके सामने मैं रखता हूँ. उसके बाद एक PDF भी आपके पास जाएगा with some study material also, exam pattern study material, which you can go through for the exams. And that's it for the ORCC class 10th English. So dear friends, as you can see that this is expected questions in English for 2025 November exams. So obviously जब पहला point है unseen passages जो आप देखेंगे वहाँ पे, obviously those passages we cannot give a guess for those. We cannot expect which specific particular passage you'll be asked. But what you can do is you can go through some passages. आप कुछ passages जो है वो पढ़ेंगे which are based on discipline, which are based on the reading, the pleasures of reading, the benefits of reading, maybe books, newspapers. Similarly, there is a possibility of passages that can come regarding technology. Now this is the world of AI. So is AI a threat to creativity? इसके related passage आ सकते हैं. Technological revolution जो आ रहा है through phones, through apps that are coming up, उसका क्या असर इंसानी ज़ात पे पड़ रहा है? How are we able to, how are we adapting to the different technological upheavals that are coming? So that also can be a passage about. And similarly, environmental pollution is a great threat nowadays, as you can see. Whether it is water pollution, air pollution, noise pollution, soil pollution, overall environment pollution. मुझे लगता है कि आपको इन related भी scripts और articles पढ़ लेने चाहिए. That is also expected. Values of life, both important. कितना भी हम तरक्की क्यों ना करें, जो basic values of fundamental values of life है,
मोरल वैल्यूज़ हैं, वो एक सेहतमंद, एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जीने के जो इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है आपको। क्लीननेस के रिलेटेड जो है आ सकता है, ट्रीटिंग द ओल्ड, जो आज ओल्ड एज होम्स का अंदाज़ है, आजकल जो पैटर्न बन गया है कि you are seeing the old aged people being thrown out of their homes, and then once again how should we treat the elderly people, इस रिलेटेड भी पैसेज आ सकता है। मेकिंग करियर चॉइसेस नाउ, आज के इस कंपटीशन में करियर्स जो है कितना इम्पोर्टेंट है, कि करियर काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, उसके रिलेटेड भी पैसेज आ सकता है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ गेम, स्पोर्ट्स, टीचर्स का रोल, गुड पेरेंटिंग, मेंटल हेल्थ जो है, इस पे भी बड़े टॉपिक जो है पूछे जा सकते हैं। कुछ पैसेजेस आ सकते हैं जिनको आपको स्टडी करना है। ऑब्वियसली जब आप पैसेज आएगा तो उसको स्टडी करके जो नीचे क्वेश्चंस होंगे, दोज क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर। अब मैं आपको क्यों बताता हूँ ये टॉपिक्स, हिंट्स में दे रहा हूँ क्योंकि इन्हीं रिलेटेड एक्सपेक्टेड पैसेज आ सकते हैं। और ये टॉपिक्स पढ़ के, ये रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ के ना सिर्फ आपको पैसेज राइटिंग में या मे बी दिस पैसेज हैंडलिंग में हेल्प हो जाएगी, बल्कि दीज थिंग्स मे बी रिलेटेड टू आर्टिकल, स्पीच, लेटर्स, वहाँ पर भी ये मटेरियल जो है आपका काम आ सकता है, क्योंकि यही टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली एक 10th लेवल बच्चे को पूछे जा सकते हैं और जिनके बारे में उसको अवेयरनेस होनी चाहिए। सो व्हेन वी टॉक ऑफ कैरेक्टर स्केचेस में जो मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर स्केचेस पढ़ के आपको जाना चाहिए, नटालिया है। सिमिलरली नटालिया का जो कैरेक्टर है मुझे लगता है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। नटालिया का कैरेक्टर स्केच जो है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोमो, गेरासिम, मामाची, मिस्टर एंड मिसेस बेने, माटिल्डा, शुबको, शाइलॉक, एंटोनियो, नॉर्मन गॉड्सबी, बिंगले, पोर्शिया, ये कैरेक्टर्स मुझे लगता है कि आपको पढ़ के जाना चाहिए। इन कैरेक्टर्स में आपको इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी सीरीज़ होती है ABC या XYZ, तो मुख्तलिफ सीरीज़ में जो है कैरेक्टर्स जो आने हैं, इन्हीं में मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स आ जाएंगे मेरे हिसाब से। तो लॉस ऑफ नेकलेस चेंजिंग द कोर्स ऑफ माटिल्डाज लाइफ, हाउ डिड द लॉस ऑफ नेकलेस इम्पैक्ट माटिल्डाज लाइफ? ऑब्वियसली माटिल्डा का भी जो है कैरेक्टर इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, माटिल्डा मैंने लिखा हुआ है। सो उसका कैरेक्टर और जो नेकलेस का लॉस हुआ उसकी वजह से उसको ज़िंदगी की क्या क्या हकीकतें पता चली और उस लॉस ने माटिल्डा को क्या सिखाया। That is also very important, which I feel can come as a very good question for the exam. उस और एक और चीज़, एंडिंग ऑफ द नेकलेस जो है, जो आयरॉनिकल एंडिंग जो उस नेकलेस की है, उस पर आपको कमेंट किए जाना जो है, इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि स्टोरी अच्छे से पढ़े और जो एंडिंग पार्ट उसका है, जो आयरॉनिकल एंडिंग है, जब फ्रॉस्टियर और माटिल्डा मिलती हैं और उनको पता चलता है कि जो नेकलेस जो है कुछ फ्रैंक्स में उनने ख़रीदा था वो असली नकली था और 36,000 फ्रैंक्स चुकाने में कितनी बड़ी मेहनत माटिल्डा को लगी और कितना एफर्ट उनके हस्बैंड को देना पड़ा और लास्ट में पता चला कि वो तो नकली था और इस असली अमाउंट को जमा करते करते उनकी ज़िंदगी जो है वो कितनी अजीब बन गई। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू राइट इन दैट। सो obviously theme of generation gap in Abile, I have discussed that in the stories. How is generation gap in the modern generation with the elderly people, innocence and ignorance of the old women, important question है मेरे हिसाब से। Gerasim's humility, मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गैरसिम का कैरेक्टर और उसका ह्यूमिलिटी जो है द सर्वेंट स्टोरी में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आयरॉनिकल एलिमेंट्स इन डस्क, सेटिंग इन डस्क, व्हाट इज़ द सेटिंग इन डस्क, ऑरा क्या है डस्क जो है स्टोरी में, एंड सिमिलरली जैक्सटापोजिशन एंड ह्यूमर। थीम इन प्रपोजल, इफ़ वी सी प्रपोजल का जो थीम है वो आ सकता है 5 मार्क क्वेश्चन। ह्यूमर एलिमेंट जो प्रपोजल के, क्वारल्स जो प्रपोजल में हो गई है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वारल्स, वो आप पढ़ के जाएंगे, मैंने वो बताया होगा। और जहाँ पोइटिक स्टैंजास की बात है, जो लाइंस मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यू ब्रॉट मी टू ब्लूम विद द अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज। नॉर्मली मैं समझूंगा कि अगर आपके पास 8 पोएम्स हैं तो आपको 5
6 पोएम्स पढ़ के जाना चाहिए। पढ़ना तो सब कुछ है, आपको आइडिया तो हर एक चीज़ का होना चाहिए, लेकिन जो मुझे लगता है कि पहली 4 पोएम्स जो हैं और आखिरी 4, कोई आप पहली 4 पोएम्स डिसाइड करें, कोई आखिरी 4 पोएम्स डिसाइड करें, तो उनमें आपको एक स्टैंजा मिल ही जाएगा। और वो स्टैंजा जो है वो मेरे हिसाब से कुछ लाइन्स जो मैंने चुनी है वो ये होने चाहिए। यू ब्रॉट मी टू ब्लूम विद द अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज, बराबर कहाँ तक, अवेकन मी विद द फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द डॉन। और मिरेकल्स पोएम की जो इमेजरीज हैं उनको आप पढ़ के जाएंगे। स्नो ड्रॉप के पोएटिक डिवाइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुल पोएम कैन बी स्टडीड फॉर आइडिया, थीम एंड समरी। और जो व्हेन यू आर ओल्ड की लाइंस हैं मेरे हिसाब से, हाउ मेनी लाउड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, बराबर सॉरोज ऑफ चेंजिंग फेस तक। और उसी पोएम से एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स एंड हिड हिज फेस अमंग द स्टार्स। इन लाइंस में कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी छुपे हैं जो आपको साथ साथ अंडरलाइन करने पड़ेंगे। और इन लाइंस का जो आइडिया है वो आपको आंसर्स में लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो भी क्वेश्चंस होंगे इन स्टैंजाज के रिलेटेड वो पर्टिकुलरली इन्हीं स्टैंजाज के रिलेटेड होंगे, लेकिन आंसर वही दे पाएगा जिसने पूरी पोएम को समरी और सेंट्रल आइडिया के एतबार से समझा होगा, वही उस पोएम का उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएगा। ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये है कमला दास की पोएम माई मदर एट 66, द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, बराबर लास्ट तक ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो वॉल्ट विटमैन की एक्स्ट्रॉर्डनरी व्यू अबाउट मिरेकल्स क्या है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। पोएटिक डिवाइसेस इन मदर एट 66 एंड व्हाट इज द थीम ऑफ रिलेशनशिप, relationship is the nucleus of that poem. That is also what I believe can come as a question in the examination. Atmosphere and mood जो है an evening wet with rain, और इसकी imageries जो है मेरे हिसाब से बड़ी important रहेंगी एग्जाम में। Poetic devices used in the tale of Custard the Dragon and rhyme scheme of the poem जो है वो भी अहम रहेगी। पोएट्री में इतना ही। लेसन्स की बात करें तो एस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट एक अच्छा एक रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, और क्यूरियस एपिसोड्स जो हैं क्लर्जीमैन की स्टडी में, और लंदन पहुंचते हुए उसके बाद उस थिएट्रिकल कंपनी में और लंदन स्टोर में जो ग्रिफिन के हालात थे वो कैसे रहे, और लास्ट सीन जो उसका है उस स्टोरी का जहाँ पे इंस्पेक्टर शट्टी आ जाते हैं, इंस्पेक्टर जैफर्स आ जाते हैं, सॉरी, and then that scene, the funny scene, that also could be asked. Similarly, एक line है accent father की, you take delight in vexing me, you have no compassion on my nerves। तो ये मिसेस बेने बोलती है मिस्टर बेने को। तो ये explanations जो है वो आपसे पूछी जा सकती है इन important lines की। और जो humorous instances हैं accent father के, इस पे भी आपको comment करने को बोला जा सकता है। जहाँ तक एनी फ्रैंक की बात है, उनका जो अपना पेन पोर्ट्रेट है एनी फ्रैंक, कैसी आपको लगी, हाउ वाज हर कैरेक्टर एज डिपिक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनीज फादर, मदर, ग्रैंड मदर, उनकी क्या इमेज, क्या पेन पिक्चर आपने ले ली है, हाउ डू यू सी देम एज कैरेक्टर्स फ्रॉम द what's called what has been written about them by Annie in her diary, and Mandela's idea of freedom, बहुत important question है, and how did it change, वो पहले क्या था freedom का idea, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ऑपरेशन बढ़ता गया blacks पे, तो उसके बाद वो idea of freedom कैसे change हो गया with age, with experience। और जो important line वो वहाँ पे है, the depths of oppression create heights of character, इसका explanation आपसे पूछा जा सकता है। बुद्धाज आइडियाज़ एंड टीचिंग्स इन सर्मन एट बनारस, कीसा गोटामी की वो कहानी, और उसके बाद बुद्धा के जो आइडियाज़ हैं एज पर द स्टोरी अबाउट सेल्फिशनेस, अबाउट सेल्फलेसनेस इन ग्रीफ, और अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, और पेशेंस, जो उसका जो 8 फोल्ड जो है ट्रूथ है, जो वो सोल्यूशन देते हैं कि हाउ कैन वी ओवरकम सेल्फिशनेस, हाउ कैन वी यू नो अचीव that towering apex of beauty that has also been described in Sermon at Benares, and what are the learnings from Kisa Gotami's story when she loses her only son, or themes in the Merchant of Venice, obviously theme of love, theme of hatred,
थीम ऑफ फ्रेंडशिप जो वहाँ पे है मर्च ऑफ वेनिस में, उन थीम्स पे आप बात करेंगे। उसके साथ साथ जो कैरेक्टर्स मैंने बोले हैं, एंटोनियो, शाइलॉक, पोशिया, बेसेनियो, दोज कैरेक्टर्स ऑल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लर्नड। सो लेटर्स टू द एडिटर, लेटर्स की अगर बात करें तो नॉर्मली जो लेटर्स पूछी जाती हैं आजकल वो एडिटर को पूछी जाती है। अगर ना फॉर्मल लेटर्स की बात करें, आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो लेटेस्ट चल रहे हैं, लाइक यू हैव ट्रैफिक जैमिंग, यू हैव डॉग मेनेस, मोबाइल मेनेस है, बैगिंग मेनेस है, नॉइज़ पोल्यूशन है, इनसैनिटरी कंडीशंस के बारे में आपको बोला जाएगा कि आप लिख लीजिए, म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटीज़ को लिख लीजिए कि अनक्लीन सराउंडिंग्स है। इसी तरह से प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इसके लिए एग्जामिनेशन में कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर है, इसके लिए आप बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को लिख सकते हैं, इसके लिए पूछा जा सकता है। इसी तरह से लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, पार्किंग इश्यूज जो आजकल रोड्स पे देखे जाते हैं, उसके लिए ड्रग एडिक्शन के बारे में इस न्यूसेंस को हाईलाइट करने के लिए। उसके साथ साथ आपको पूछा जा सकता है इनफॉर्मल लेटर्स में, अपने ब्रदर को लिख लीजिए आप, यू नो हु इज़ टू मच बिजी विद, टू मच ऑक्यूपाइड विद मोबाइल फोन्स, द स्क्रीन टाइम इज़ टू मच फॉर हिम, एडवाइज हिम अगेंस्ट that and tell him what are the benefits and disadvantages of using phones for longer hours. Or you may be asked to write a letter to the brother or a sister congratulating him on his or success, या कुछ birthday wishes के लिए greetings, वो चीज़ें भी हो सकती है। And you'll be asked you'll be asked to write a letter to the brother about what are her career plans ahead. So these are the things which can be asked to make you write, like grandmother बीमार है, उनको आप लिखिए कि उनकी तबीयत कैसी है। इसी तरह से your brother or sister is very much confused about the career choice, advise him how to go for your career and how to do the career counseling, where from to do it, or write a letter to your uncle thanking him for a gift that he has sent you. So these letters can come in your examination. आर्टिकल स्पीचेस जो है, आर्टिकल्स और स्पीचेस इनको बनाना हो तो नो स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़ बड़े लेटेस्ट इश्यूज़ हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन जो मैं समझता हूँ आज बहुत ज़्यादा एक बड़ा मसला है। अनप्रोफेशनल जर्नलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। आजकल का जर्नलिज्म जो बड़ा अनप्रोफेशनल है, हर कोई खबर जो है सामने विदाउट एनी एविडेंस, एनी डेटा सामने आ जाती है। रेकलेस ड्राइविंग, एक्सीडेंट्स जो कॉन्स्टेंटली हो जाते हैं रोड्स पे, एक्स्ट्रावैगन्स इन मैरिजेस, जो हम आज मैरिजेस में बहुत ज़्यादा फजूल खर्चियाँ करते हैं, इंक्रीजिंग सुसाइड्स अमंग टीन्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स रिलेटेड वैल्यू इरोजन, मॉरल करप्शन हो गई है, एजुकेशन जो है वो कमर्शलाइज हो गई है, तो इस रिलेटेड भी कुछ आर्टिकल लिखने को बोला जा सकता है। इल्स एंड इवल्स ऑफ जंक फूड, हेल्दी फूड्स की इम्पोर्टेंस, लाइफस्टाइल चेंजेस, जो इसके रिलेटेड भी आज के आर्टिकल्स या स्पीचेस जो है आपको बनाने को बोला जा सकता है। नोटिस राइटिंग की अगर बात करें तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होने वाला है, ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, कोई इवेंट है आपके स्कूल में होने जा रहा है, कोई इंटर स्कूल जो है मेला होने वाला है, तो उसके रिलेटेड कुछ नोटिस बनवानी है। आप हेड बॉय है या आप हेड गर्ल हैं या आप स्कूल सेक्रेटरी है, तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, ब्लड डोनेशन कैंप, स्पोर्ट्स, एनुअल टीचर्स डे सेलिब्रेशंस। मैसेज राइटिंग के लिए मे बी यू आर कंडोलिंग समवन, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन आपको दी जाएगी वहाँ पे, और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे यू हैव टू क्रिएट ए मैसेज, मे बी ग्रीटिंग्स किसी को करनी है, इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट देनी है, एडवर्टीजमेंट राइटिंग हो सकती है। एडवर्टीजमेंट राइटिंग मीन्स you have to draft an advertisement, obviously एक commercial ad आपको बनाना है। अगर आपको choice मिली advertisements की, I don't think it will be there. I am very much sure that story आपको create करनी होगी on the basis of the hints that will be given there. So these are some important things that I think I needed to discuss with you. उसके साथ साथ जब आप पेपर जो है वो लिखें, इंग्लिश का पेपर जब आप लिखें, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात जो है कि पेपर को अच्छे से पढ़ें। यू शुड रीड द पेपर वेरी केयरफुली। हो सकता है कि
पहला क्वेश्चन जो है जो आप देख रहे हैं वो आपके सिर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस उस चीज़ की वजह से आप मेंटली ट्रॉमा में आ जाएं और उसके बाद आप आगे जो है पेपर पढ़ना ही ना चाहें और आप बस रैंडमली वहाँ यहाँ लीव थ्रू करें। नो, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको इनिशियली डिफ़िकल्ट भी लग सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप पेपर पढ़ना छोड़ देंगे। पेपर आपको सारा पढ़ना है। In fact, you are given some time also to read the paper. Please don't worry whether a few questions you are feeling they are a little difficult for you. वो 2-3 डिफ़िकल्ट चीज़ें आपके पूरी प्रिपरेशन को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1 है जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जब पहली ही क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं वहाँ यहाँ आया है तो उसके बाद उनका मेंटल बैलेंस खो जाता है। उसके बाद वो उन अच्छे क्वेश्चंस को भी जो वो कर सकते थे उन अच्छे क्वेश्चंस को भी वो ख़राब कर देते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द माइंड। सो दूसरी बात, जो आपका बेस्ट प्रिपरेशन है पेपर का, यानी कि चाहे आप लिटरेचर क्वेश्चंस आपके बेस्ट मुझे लगता है आपको प्रिपेयर्ड हैं, या अगर आपको लगता है ग्रामर पार्ट आपका बड़ा स्ट्रांग है, बिल्कुल सही है। अगर आपको लगता है नहीं मेरा आर्टिकल जो है या कोई स्पीच आई है जो मैंने प्रिपेयर भी की है, या आपको लगता है कि मे बी मैं स्टोरी जो मुझे वहाँ पे आई है क्रिएटिव स्टोरी वो मुझे अच्छी तरह से आती है लिखनी, या आपको लगता है कुछ पोएट्री जो है जो आपने अच्छे से स्टैंजास प्रिपेयर किए थे वही वहाँ पे एग्जाम में आए हैं, तो स्टार्ट विद दैट। सो व्हाई डू आई से दिस? नंबर 1, जो एग्जामिनर होता है जब वो देखता है पहले ही पेज से एक पॉजिटिव ऑरा निकलता है, पहले पेज से करेक्ट चीज़ें आ जाती है उसके सामने, तो साइकोलॉजिकली एग्जामिनर समझने लगता है कि नहीं इस बच्चे ने हैज़ स्टार्टेड वेल, और ऑब्वियसली ही स्टार्ट्स गेटिंग इन द राइट फ्रेम अबाउट यू। अगर आप एक डाउटफुल आंसर से स्टार्ट करते हैं तो एग्जामिनर समझता है कि बच्चा जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, इसने खास किया भी नहीं होगा। तीसरी बात, जहाँ तक आपकी राइटिंग की बात है, जो आप पहले पेजेस लिखिए, मुझे पता है कि वहाँ पे टाइम फैक्टर भी एक बड़ा फैक्टर होता है। जो आप पहले पेजेस लिखेंगे वो आप कोशिश करेंगे बड़े नीट और लेजिबल लिखने की, साफ और लेजिबल। लेजिबल मीन्स इट शुड बी रीडेबल, एग्जामिनर को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू, क्योंकि जब आपका राइटिंग समझ नहीं आता है तो एग्जामिनर जो है साइकोलॉजिकली आपके बारे में एक नेगेटिव व्यू लेता है कि ये बच्चा जो है इसका समझ ही नहीं कुछ आता है, तो उसका असर जो है आपके मार्क्स से पड़ सकता है। सो द फर्स्ट फ्यू पेजेस यू विल ट्राई टू, इनफैक्ट माशाल्लाह यू विल ट्राई टू राइट एवरीथिंग क्लीनली, लेकिन हो सकता है कि जितना पेस आगे बढ़ता है, जितना टाइम आगे बढ़ जाता है उतनी पेस भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि बहुत सारा बड़ा पेपर जो है मुझे 3 घंटे में कवर करना है। सो डोंट बी टू स्लो, डोंट बी टू फास्ट, ट्राई टू क्रिएट अ मीडियम पेस, जिससे आपको, और घड़ी आपके सामने होनी चाहिए। मुझे इस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, यू शुड ऑलवेज बी वेरी मच गुड एट कैलकुलेशंस, दैट इज गोइंग टू हेल्प। ऐसा नहीं कि आप बस एक ही आर्टिकल लिखते गए 1 घंटा आपने उसी के साथ गुजारा, उसके 4 मार्क्स थे तो बाकी 96 मार्क्स आपने छोड़ दिए, वैसा अप्रोच नहीं इख्तियार करना। यू हैव टू गिव द राइट टाइम अमाउंट टू द राइट क्वेश्चन। चौथी बात, कुछ लोग क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस को सही से समझते नहीं है। द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हैज़ टू बी अंडरस्टूड। एग्जामिनर जो है मुझसे क्या चाहता है, अगर वो बोलता है व्हाट आर द क्यूरियस एपिसोड्स, तो मुझे लंदन स्टोर की बात नहीं लिखनी है, मुझे थिएट्रिकल कंपनी की बात नहीं लिखनी है, मैं वहाँ यहाँ की बात नहीं लिखता। आई हैव टू हिट द नेल ऑन इट्स हेड। मगर मैं एडवाइस करूँगा जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स क्वेश्चंस, क्लास 10th में कंटेंट जो होता है उसका अमाउंट भी मैटर करता है। सो प्लीज़ डोंट राइट बस 5 लाइन्स आपने लिख ली तो आपने एक्सपेक्ट किया मुझे 4 मार्क्स आ जाएंगे। नो, आपको ख्याल रखना है कि कंटेंट जो आपका होना चाहिए, एक वो रेलेवेंट भी होना चाहिए और वो सफिशिएंट भी होना चाहिए, यानी कि आपका 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन कम से कम 1-2 पेजेस पे जाना चाहिए, 2 या 2.25 पेज पे जाना चाहिए। और उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा ऑब्वियसली लेसन का इंट्रोडक्शन जो है रेलेवेंट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, और उसके बाद टू द पॉइंट जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको लिख सकते हैं। बेशतर 80% वही होना चाहिए, 10% थोड़ा इंट्रोडक्शन और 10% कंक्लूजन। 80% होना चाहिए जो आपसे एग्जामिनर मांग रहा है, क्योंकि आपको पेजेस भी भरने हैं और पेजेस भरने के लिए आपके पास थोड़ा कंटेंट भी होना चाहिए। दैट्स ओवरऑल व्यू, ओवरऑल आइडिया, ओवरऑल समरी, ओवरऑल सेंट्रल आइडिया आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कम लिखने से मैंने देखा है, इवन दो दैट इज रेलेवेंट, अगर आपने कम आंसर लिखा है, छोटा लिखा है, रेलेवेंट भी है, आंसर देता है वो उसके क्वेश्चन का, लेकिन कंटेंट
थोड़ा सा है तो उसको मार्क्स जो है कट जाएंगे। सो 10th क्लास में कंटेंट का ख्याल रखें, अच्छे खासे आंसर्स लिखें, ज़्यादा छोटे आंसर्स नहीं लिखें। नेक्स्ट बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपकी स्पेलिंग्स, आपकी पंक्चुएशन, आपका ग्रामर जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। आपको कैपिटल लेटर कहाँ लिखना है, स्मॉल कहाँ लिखना है, ये पता होना चाहिए। कॉमा कहाँ डालना है, एपोस्ट्रोफी कहाँ डालना है, ये आपको पता होना चाहिए। नोट ऑफ इंट्रोडक्शन कहाँ होना है। और स्पेलिंग्स आपकी जो है, जो मैंने अक्सर जब मैं मार्क करता हूँ ये आंसर शीट्स कभी कभी, तो वहाँ मुझे पता चला स्पेलिंग एरर्स आर टेरेबल। तो कोशिश करें कि जो आपकी स्पेलिंग है दैट हैज़ टू बी ऑब्वियसली टू द पॉइंट। और उसके बाद एक और चीज़, राइट रेफरेंस। लाइक अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट लिख रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए, आंसर 3B, तो उसको अंडरलाइन भी करना चाहिए, थोड़ा डबल अंडरलाइन, सो दैट एग्जामिनर समझे कि मैं किस आंसर को पढ़ रहा हूँ और इसका ताल्लुक किस क्वेश्चन के साथ। डोंट वेस्ट योर टाइम राइटिंग क्वेश्चंस ऑल्सो, डोंट राइट द क्वेश्चंस, राइट ओनली आंसर्स। और उसके साथ साथ एक और पॉइंट, अगर आप कोई रफ वर्क करना चाहते हैं, उस रफ वर्क को आप लास्ट के पेज में कर लीजिए, उसको ऊपर लिखिए ROUGH, रफ वर्क, और उसके बाद जो है एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये। और रफ वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट भी कभी होता है, सपोज आपको स्टोरी की आउटलाइन बनानी है, लास्ट में जो आप रफ वर्क करेंगे, एग्जामिनर ज़रूर देखिएगा कि इस बच्चे ने स्टोरी आउटलाइन को क्रिएट किया है थ्रू सम एक्सरसाइज, इसने कुछ सोचा है, सम क्रिएटिविटी ही हैज़ और शी हैज़ यूज्ड। इस तरह से आप स्पीच बना रहे हैं, लेटर का जो है खाका खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कैरेक्टर्स की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, प्लीज़ डोंट वरी आपको रफ वर्क में 3-4 पेजेस भी लग जाते हैं, दैट इज़ अप्रिशिएबल। आप ये ना समझे कि आपका पेपर खराब हो रहा है, उससे वो गंदा लग रहा है, नो 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 नो, जस्ट मैनेज रफ वर्क। लिखना है, टाइटल करके रखो उस वाले पेज को, इट्स रफ वर्क, और that is very important for you to do. And time management, as I told you, is very very crucial. Merit of the question के हिसाब से आपको लिखना है। क्वेश्चन के 2 ही मार्क्स हैं, आपको उतना ही लिखना है। क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, आपको उतना लिखना है। ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आप 4 मार्क्स वाला ट्रीटमेंट दे, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आप 2 मार्क्स वाला ट्रीटमेंट दे, दैट हैज़ नॉट टू बी डन। तो पढ़ के सारा जाना है, गेस इज ऑलवेज गेस। ये नहीं होता है कि बस हर रोज़ आप गेस पे हो जाएंगे। अगर आप गेस पढ़ेंगे तो बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे तो दैट विल लैंड यू इन ट्रबल। येस, मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड थिंग्स आर गोइंग टू कम लाइक दिस ओनली, जैसे मैंने बोला, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू डू इट। अगर मैं बोलूँ 10 ही क्वेश्चन हैं, 15 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन वो तो पढ़ के जाना है ना अच्छी तरह से। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो राइटिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन होंगे वो बेटर आप तभी कर सकते हैं इफ़ यू डेवलप गुड कंटेंट, और गुड कंटेंट कैन बी डेवलप्ड इफ़ यू रीड अबाउट गुड टॉपिक्स। जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे छेड़े हैं उन टॉपिक्स के बारे में इंशाल्लाह आप पढ़ के जाएंगे, और जितना आप थोड़ा हार्डवर्क करेंगे इस वक्त उतना आपको, और किसी भी इंफॉर्मेशन को ज़ाया नहीं होने देना। अगर आपने कुछ पढ़ा है, रेलिवेंट है, लिखो, पेजेस बहुत आपके आने चाहिए, क्वेश्चन पेपर शुड लुक फुल, दैट मैटर्स अ लॉट। प्लीज़ डोंट फील दैट नो मैं टू द पॉइंट आंसर लिखूंगी या लिखूंगा तो बस काम बन जाएगा। टू द पॉइंट लिखना है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के तहत जितना कंटेंट आपको डेवलप करना है उतना आपको डेवलप करना चाहिए। एंड डोंट रिपीट द आइडियाज़। आपने एक ही बात बार बार लिखी वो नहीं करना चाहिए। यू मस्ट हैव डाइवर्सिटी, you must have clarity, diversity, and your handwriting should be very much beautiful, as much as possible in English, because that always creates a great impression in the mind of the examiner. मुझे लगता है ये बातें अगर आप जहन में रखेंगे तो ये कोई मसला नहीं है कि आप इंशाल्लाह 95++ जो है इंग्लिश में लाएंगे। तो आई एम कॉन्फिडेंट दैट ऑल ऑफ यू आर with the right frame of mind, which is very important. Please don't panic. मैं अभी भी बताता हूँ आपको, sleep well on the exam, the prior to the night of the examination. Suppose आपका examination मंडे को है, तो जो संडे शाम से मंडे सुबह तक की जो रात का वक्त है, अच्छे से सोए, नमाज रेगुलरली पढ़े, प्रेयर्स करें, अच्छी तरह से रिलैक्स रहे, कूल रहे। इट इज़ जस्ट एन एग्जामिनेशन, इट्स नॉट द टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। देयर आर सो मेनी सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड who have not got good marks in the examination. Please don't worry about marks that way. नहीं जी हमें marks खोने नहीं है, but just worry about the fact that I have to give my best. जो मैंने प्रिपरेशन की है उसको मुझे दिखाना है on the paper. I have to show that on the paper just to satisfy myself. And inshallah when you give your best, God will do the rest. Marks भी आ जाएंगे. And if your response is to your satisfaction, I think even though कभी 1-2 मार्क वहाँ यहाँ हो भी जाते हैं, तो
In case of grammar, please do not listen to here and there remarks. उसने कहा, इसने कहा, वो नकल वाला approach जो बच्चे रखते हैं एग्जाम में, उसने क्या लिखा था, इसने क्या लिखा था, मैं भी will know. If you have a good hold on your concept, yes, it's correct, it's correct. Don't get confirmed from every corner if you are confident. हाँ, कन्फर्मेशन के लिए वही बोलता है जो खुद कॉन्फिडेंट नहीं होता, और मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट जो आपने लिए हैं ग्रामर के इतने कॉन्फिडेंट है कि आपको किससे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। और ऐसा नहीं करना कि पहले काटा और फिर लिखा, एग्जामिनर विल एनीवेज नलिफाई दैट, यू विल नॉट गेट ए मार्क फॉर दैट। कटिंग्स पे जितना हो सके उतना आप जो है कंट्रोल करना वहाँ पे, जितना हो सके उतना कंट्रोल। दैट्स वाई आई वांट यू टू गिव गुड टाइम फॉर रीडिंग द पेपर, assimilating the answer and writing it there on the paper accordingly. Proper margin lines जो है वो आप draw करेंगे। लेटर की बात जो है मैंने आपको बोला है, लेटर राइटिंग में भी पैराग्राफ जब करेंगे फुल लाइन डालेंगे पैराज के बीच, और उसके बाद लेफ्ट साइड से बाज़ाब्ता तौर पेज आपका लुक गुड करना चाहिए। प्रेफरेबली अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे ब्लैक से, आंसर लिखेंगे ब्लू से, दैट ऑल्सो। अगर ना कोई ऊपर टाइटल होता है कुछ ऐसा, यू कैन यूज दैट ऑल्सो, और यू कैन यूज ऑल ब्लू, दैट ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू बी एनी ग्रेट प्रॉब्लम। रोल नंबर बहुत ही ध्यान से, ऐसा नहीं कि आप पेपर में खो जाए लेकिन रोल नंबर ना लिखें। रोल नंबर जो भी डिटेल्स वहाँ एग्जामिनर आपसे आंसर में मांगता है, टेक इट। अगर आप कॉन्टिन्यूशन शीट ले रहे हैं, मेक श्योर दैट उस कॉन्टिन्यूशन शीट पे भी अपनी डिटेल्स अच्छे से लिखें, क्योंकि जहन वहाँ यहाँ चला जाता है, वहाँ पे एग्जाम में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो स्टेपल इट प्रॉपरली, मेक श्योर दैट यू थ्रेड इट प्रॉपरली, यू टाइट प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, वट एवर इज अवेलेबल देयर। तो मुझे लगता है ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी डन। एंड लास्ट में एक राउंड ज़रूर करें 5-6 मिनट का, जहाँ पे आप देखें क्या मेरे तमाम क्वेश्चन जो है मैंने लिखे हैं कि नहीं, कुछ छूटा तो नहीं है, have I done everything as per the plan or not. So that's it. I would wish you all the best, my dear boys and girls. Inshallah, I'm confident that all of you will come out with flying colors. Success is bound to be yours. It was so nice and wonderful talking to you, being with you through this program. Inshallah, once you are done with your exams, I'm confident that you will have a great feeling that we attended the ORCC. Plus, I'm going to send you some PDFs also through the IT department of Sky Classes. Please stay in touch with that. And if at all you require me for any help during the course or before the exams, please, that number is with you, 9149753891. You can always give me a WhatsApp message there, a voice note there. I'll be trying my best to get back to you as soon as possible. With best wishes and prayers, I sign off here from Sky Classes ORCC program, class 10th. All the best. Assalamu alaikum.